ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ 8th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ A ਤੇ ਐਂਗਲ B ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਸ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ A ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਂਗਲ B ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ cos A = cos B ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, cos of A = cos of B, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ cos A, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਨੇਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ A ਹੈ, B ਉਧਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ C ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ D ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ B ਆ ਗਿਆ, CD ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਤੇ F ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ cos A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ cos ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਐਂਗਲ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਹ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੋ 90 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਐਂਗਲ B ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਇਸ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ cos A ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ AC ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ AD। ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ BE ਓਵਰ BF ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ। AC ਓਵਰ BE = AD ਓਵਰ BF। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ AD, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ K ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ K ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। K ਕੋਈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਓਵਰ 1 ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ K ਓਵਰ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। AC ਓਵਰ BE = K ਓਵਰ 1 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AD ਓਵਰ BF ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K ਓਵਰ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ in terms of BE, ਜੋ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗੀ K into BE ਤੇ AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ K into BF ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, AC AD ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ 'ਚੋਂ CD ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ EF ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਏ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही। सो पाइथागोरस थ्योरम राही अपने कोल जिहड़ी CD है उसका स्क्वेयर आ जाएगा। करण दी 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ 2 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। सो AD ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ AC ਦੀ 2, इधरों स्क्वेयर हटावांगे तो CD ਦੀ वैल्यू आ जाएगी √ऑफ AD² माइनस AC²। इसी तरह इस ट्राइंगल दे विचों आपां EF की वैल्यू कड्डांगे। सो पहला आ जाएगा उरे एंड लिख लेंदे आ EF दा स्क्वेयर इक्वल्स टू BF दा स्क्वेयर माइनस BE दा स्क्वेयर।
सो इत्थों स्केयर हटावांगे तो अपने को आ जाएगा ई एफ इज इक्वल्स टू रूट ऑफ बी एफ स्क्वेयर माइनस बी ई दा स्क्वेयर। सो सी डी ते ई एफ की वैल्यू आ गई। हुण आपां लैंदे आ इन्हां दी रेशो। सो इत्थे आ जाएगा अपने को सी डी ओवर ई एफ इज इक्वल्स टू वैल्यूज़ भरते हैं रूट ऑफ ए डी स्केयर माइनस ए सी स्केयर ओवर रूट ऑफ बी एफ स्केयर माइनस बी ई स्केयर। सो इस तो बाद आपां देखते हैं कि ए डी है इज इक्वल्स टू के इंटू बी एफ। सो ए डी की जगह पर आपां ये भरांगे तो ए सी की जगह पर आपां आ वाली वैल्यू भरांगे। सो इत्थे आ जाएगा ए डी का स्केयर मीनस के बी एफ के का स्केयर ते नाल बी एफ का स्केयर क्योंकि वैल्यू भरती क्योंकि वह स्केयर सी। सो वैल्यू का भी स्केयर हो गया माइनस ए सी का स्केयर के स्केयर इंटू बी ई स्केयर आ जाएगा के स्केयर बी ई स्केयर उसका रूट ओवर रूट ऑफ बी एफ स्केयर माइनस बी ई स्केयर। हाँ जी नीचे वाली सेम आ गई अपने को टर्म। इस तो बाद उपर अपने को के स्केयर कॉमन कर सकते हैं के स्केयर ब्रैकेट च बी एफ स्केयर माइनस बी ई स्केयर तो वह रूट ओवर नीचे का सेम ही रूट ऑफ बी एफ स्केयर माइनस बी ई का स्केयर। सो उपरों आप के स्केयर आ जो रूट च इनू बाहर कढ़ सकते हैं आ जाएगा बाहर रह के क्योंकि स्केयर है रूट लेंदिया होया ये जोड़ा है स्केयर वो रूट के नाल कट हो जाएगा। सो के आ गया बाहर अंदर रह जाएगा बी एफ स्केयर माइनस बी ई स्केयर ओवर रूट ऑफ बी एफ स्केयर माइनस बी ई स्केयर। सो आ ये कैंसल हो गया सेम हो गया सी क्योंकि सो ये भी आ गया अपने को के दे इक्वल। सो अपने को सी डी ओवर ई एफ इक्वल आ गया किस दे के दे। तो आप देख सकते हैं पहला दोनों ट्राइंगल्स सीगियां जड़ियां उन्हां दियां दो दो साइड्स की रेशो है जी वो के दे इक्वल सी। हुण तीजी साइड की रेशो भी के दे इक्वल आ गई। हुण आप इत्थों लिख सकते हैं विच इंप्लाइज के ए सी ओवर बी ई is equals to AD over BF is equals to CD over EF। हुण तीनों साइड्स की रेशो इक्वल हो जाए जेकर दो ट्राइंगल्स दे विच तां ओह दोनों ट्राइंगल्स हो जांदियां ने सिमिलर यानी कि समरूप विच इंप्लाइज ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल BEF। हाँ जी ये कादे थ्रू सिमिलर हो गई एस 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 बाय एस 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 यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया के थ्रू। सो जदों अपने को दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाण तां उन्हां दे कोरस्पोंडिंग एंगल्स हुंदे ने इक्वल यानी कि उन्हां दे संगत कोण हुंदे ने बराबर। सो उहदे अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल दा एंगल ए इस ट्राइंगल दे एंगल बी दे इक्वल हो जाएगा विच इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। पिछे रीजन दे सकते हो कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यानी कि समरूप त्रिभुजां दे संगत कोण। सो उत्थों अपने को ए ते बी बराबर हो गए यही आपां सिद्ध करना सी हैंस प्रूव्ड। सो ये क्वेश्चन होया अपना कंप्लीट। हुण आने आपां 7th क्वेश्चन ते जिस दे विच आपां नूं cot थीटा दी वैल्यू दे रखी है 7/8 तां आपां 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा ਇਹਦੀ वैल्यू ਕੱਢਣੀ है ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ cot स्क्वायर थीटा ਦੀ वैल्यू ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ sin ਥੀਟਾ ਤੇ cos ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ cot ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7/8 ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cot ਹੁੰਦਾ ਹੈ आधार बटे लंब के बराबर। सो ये आप जेकर इत्थे थीटा लईए इन्हां दे कोई नाम ले लैंदे आ A B C तां थीटा अपने कोल इत्थे है जदों भी कोई एंगल दिता होए तां उहनूं कोशिश करनी है कि हेठां ही रखना है।
सो अपने कोल आधार है ए बी, यह अपने कोल है बेस, तो आह है अपने कोल परपेंडिकुलर, तो आह है अपने कोल हाइपोटेन्यूज यानी कि करण, तो यह लंब, तो कॉट हुंदा है आधार बटे लंब। सो अपने कोल आ जाएगा विच इंप्लाइज ए बी ओवर बी सी इज इक्वल्स टू 7/8। हुण यह 7/8 के इक्वल है, तो इत्थों आप ए बी ते बी सी की जिहड़ी लेंथ है वह इन टर्म्स ऑफ के ले लांगे। सो लेट ए बी इज इक्वल्स टू 7K कोमा बी सी इज इक्वल्स टू 8K। इत्थे पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख लैणगे मान लो। सो ए बी आ गई अपने कोल 7K ते बी सी आ गई अपने कोल 8K। हुण आपां पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए सी की लेंथ यानी कि हाइपोटेन्यूज लभांगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस तरह लिख लैणगे। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाने तो अपने को आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज भरीए तो ए सी तो अपने को है नहीं, ए बी की जगह 7K उसका स्क्वायर प्लस बी सी की जगह 8K उसका स्क्वायर। सो अगले स्टैप ए सी स्क्वायर इधर 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन्हों ऐड करिए तो 9 4 13 1 6 4 10 1 11 113 नाल आ जाएगा के दा स्क्वायर। सो इधरों स्क्वायर हटावांगे तो अपने को आ जाएगा रूट ऑफ 113। के स्क्वायर का रूट करांगे तो उस के बाहर निकल जाएगा। सो इन्ना आ जाएगा अपने को रूट 113K। सो यह आ गई अपने को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट ऑफ 113K। हुण आपां साइन थीटा ते कोस थीटा लभ के फिर वैल्यूज उहदे विच भरांगे। हुण इत्थों आ जाएगा अपने कोल साइन थीटा। साइन हुंदा है अपने कोल लंब बटे कर्ण, तो थीटा सामने वाला लंब 8K बटे कर्ण 90 के सामने वाला रूट 113K। आ के नाल के कट्टिया जाएगा। सो 8/√113 आ गई इसकी वैल्यू। तो कॉस थीटा कढ़ते हैं हुण आपां। कॉस हुंदा है आधार बटे कर्ण यानी कि 7K ओवर दिस 7K ओवर √113K। के नाल के कट्टिया जाएगा 7/√113। हाँ जी दोनों की वैल्यू आ गई। हुण आपां पहले पार्ट दे विच वैल्यूज भरते हैं। सो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113 फिर 1 माइनस साइन थीटा 8/√113 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा मीन्स 1 प्लस दिस ओवर √113। इसी तरह 1 माइनस यही वैल्यू 7/√113। ओके इस तो बाद आपां उपर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला रिजल्ट लगा सकते हैं जो कि आ जाएगा 1 माइनस 8/√113 उसका स्केयर। नीचे भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर लग सकता है। सो 1 माइनस 7/√113 उसका स्केयर। सो ये फर्दर आ जाएगा अपने को 1 माइनस 64/113 ओवर 1 माइनस 49/113। हुण आप एलसीएम ले लेंगे उपर नीचे आ जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 बटे 113 माइनस 49 ओवर 113। सो इस तो बाद आह 113 थले कट्टिया जाएगा जो इनू सबट्रैक्ट करके अपने को आ जाएगा। इस तो बाद आप इत्थे लिख दिंने 49 ओवर ये 49 घटावांगे तो आ जाएगा 64। सो ये आंसर आ जाएगा अपने को फर्स्ट पार्ट के लिए। सैकेंड पार्ट का आंसर आप इत्थे कढ़ लैंदे आ। उहदे लई आपां इनू स्केयर ही करना है। सैकेंड दे लई कोट स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 उस दा स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा अपने को 49/64 इज द आंसर। आने एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन ते जिस दे विच आपां नूं दे रखिया उन्होंने 3 × कोट ए इज इक्वल्स टू 4
तो आप चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्केयर ए ओवर 1 प्लस टेन स्केयर ए बराबर है कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए दे के नहीं। ये अपना क्वेश्चन तो अपने को जिहड़ा एंगल है वह है ए। सो आप ट्रायंगल बनाई एक राइट ट्रायंगल उहदे विच एंगल ए नूं रखिया आपां हेठां ते इस दे बाकी दे जिहड़े नाम ने उहदे अकॉर्डिंग इत्थे बी ते सी ले लैंदे आं आपां। सो ABC ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। हुण इहदे विच आपां दे रखिया उन्हां ने कोट ए। सो सोल्यूशन देखदे आं। कोट ए है अपने कोल 4 आ जिहड़ा 3 है उहदे नीचे चल जाएगा ओवर 3 इस तरह बन जाएगा। तो कोट हुंदा है अपने कोल आधार बटे लंब यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। इट मीनस यह AB ओवर BC की वैल्यू होगी। सो AB ओवर BC इज इक्वल्स टू 4 ओवर 3। सो इत्थों आपां हुण AB की वैल्यू है जिहड़ी ओह 4 इंटू K एज्यूम कर लांगे ते जिहड़ी BC की लेंथ है वह 3 इंटू K एज्यूम कर लांगे। लेट AB इज इक्वल्स टू 4K कोमा BC इज इक्वल्स टू 3K। सो यह आ गई अपनी 4K ते यह आ गई 3K। हुण पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपां AC की लेंथ पता करते हैं। उस तो बाद आपां tan A ते साइन ए ते कोस ए दियां वैल्यूज करते हैं। फिर ये भर के देखते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं कि नहीं। सो इत्थों आपां हाइपोटेन्यूज कड्ढण दे लई पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने इस तरह लिख लेना है। फिर इत्थों अपने कोल AC का स्क्वेयर है जिहड़ा करण दी 2 बराबर बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। सो 4K का स्क्वेयर प्लस 3K का स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा 16K स्क्वेयर प्लस 9K स्क्वेयर जो कि बन जाएगा अपने कोल 25K स्क्वेयर। दूसरी साइड ते AC स्क्वेयर आ रहा अपने कोल। सो इत्थों AC की वैल्यू कड्ढण वेले रूट ऑफ 25K स्क्वेयर आ जाएगा तो 25 का रूट होंगे 5K स्क्वेयर का रूट आ जाएगा अपने कोल K। सो AC की लेंथ आ गई। इत्थों आप इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लवांगे क्योंकि जिहड़ी लेंथ होंदी है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही हो सकती है। सो यह आ गई अपने कोल 5K। हुण आपां साइन ते कोस कढ़दे हां। सो इत्थों आ जाएगा अपने कोल साइन A। साइन होंदा है अपने कोल लंब बटे करण यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो इत्थों यह आ जाएगा BC ओवर AC इज इक्वल्स टू 3K ओवर 5K। K नाल K कैंसल, इसकी वैल्यू आ गई 3 ओवर 5। हुण वैल्यू कढ़ते हैं आप cos A दी। cos A बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो AB ओवर AC 4K ओवर 5K मीनस इसकी वैल्यू आ गई 4 ओवर 5। तो नाल ही आपां नूं चाहिदा tan A। tan A हुंदा है cot A का रेसिप्रोकल ते cot A की वैल्यू अपने कोल है। सो 1 ओवर cot A कर लांगे इनू उल्टा देंगे। सो tan की वैल्यू आ जाएगी अपने कोल 3 ओवर 4। सो सारियां वैल्यूज आ गई। हुण आपां जो चैक करना है कि यह इक्वल है या नहीं उहदे विच वैल्यूज भरते हैं। नाओ यानी कि हुण 1 माइनस tan स्क्वेयर A ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर A। दूजी साइड ते cos स्क्वेयर A माइनस साइन स्क्वेयर A वैल्यूज भरते हैं। ये आपां 1 माइनस tan A की वैल्यू है अपने कोल 3 ओवर 4। 3 ओवर 4 का स्क्वेयर ओवर 1 प्लस 3 ओवर 4 का स्क्वेयर। दूजी साइड ते cos A है 4 ओवर 5 उसका स्क्वेयर माइनस साइन A है अपने कोल 3 ओवर 5 उसका स्क्वेयर। सो इस तो बाद लैफ्ट हैंड साइड ते अपने को आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वेयर 9 ओवर 4 का स्क्वेयर 16 ओवर 1 प्लस 9 ओवर 16। तो दूसरी साइड ते 16 ओवर 25 माइनस 9 ओवर 25। सो इत्थों LCM लवांगे तो अपने को आ जाएगा 16 माइनस 9 ओवर 16 होल ओवर 16 प्लस 9 ओवर 16।
दूसरी साइड ते इन्हां दा LCM 25 हो जाएगा 16 माइनस 9 आ 16 नाल 16 इस तरह कैंसल हो जाता हुंदा है उपर आ जाएगा अपने कोल 7 ओवर 16 ते 9 हो गए 25 तो दूसरी साइड ते भी आ गया अपने कोल 7 ओवर 25 सो यस दे आर इक्वल यस यानी कि हाँ यह बराबर ने सो यह अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। हुण आने हैं क्वेश्चन नंबर 9 ते जिसकी स्टेटमेंट है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट एंगल B उन्होंने 90 डिग्री का आपां नूं दिता होया है कोई ट्राइंगल ABC दे विच tan A दी वैल्यू दी हुई है तो आपां इन्हां दी वैल्यू लभनी है। हुण tan A दी वैल्यू दी ओह गल करदा पिया सो A आपां ले लांगे हेठां B ते तां उहने आपां नूं 90 कह ही दिता सो तीजा जिहड़ा C है ओह आपां इत्थे ले लांगे। हुण इस ट्राइंगल दे विच tan A जो आपां नूं दे रखिया उहनूं यूज करदे हां tan A इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट 3 तो tan हुंदा अपने कोल लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस आह होएगा अपने कोल बेस ते आह परपेंडिकुलर सो परपेंडिकुलर ओवर बेस इट मीनस अपने कोल BC ओवर AB दी वैल्यू है ये विच इंप्लाइज BC ओवर AB ये आ गया अपने कोल 1 ओवर रूट 3 तो इत्थों आपां जदों BC दी लेंथ लवांगे वो लवांगे आ 1 दे नाल K लैके सो लेट BC इज इक्वल्स टू 1K कोमा AB इज इक्वल्स टू रूट 3K। हुण आपां पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीजी साइड कड्डांगे जो कि है अपने कोल AC बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही इत्थों आ जाएगा अपने कोल AC दा स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC दा स्क्वायर AB दी वैल्यू है अपने कोल रूट 3K प्लस BC है 1K ਇਹਦਾ स्क्वायर करांगे तो 3 मिल जाएगा नाल आ जाएगा K दा स्क्वायर प्लस 1 दा स्क्वायर 1 नाल K दा स्क्वायर सो ये बन गया 4K स्क्वायर दूसरी साइड ते है अपने कोल AC दा स्क्वायर सो इधरों AC का स्केयर हटावांगे तो उधर रूट बन जाएगा 4K स्केयर का तो ये 4 का रूट होंगे अपने को 2 K स्केयर का रूट आ गया K सो AC की लेंथ आ गई अपने को 2K आ 2K तो BC सी अपने को 1K तो आह सी अपने को रूट 3K। हुण आपां वैल्यू कड्ढनी है साइन ए दी कॉस ए दी तो उस तो बाद साइन सी दी कॉस सी दी सो साइन ए कॉस ए दियां वैल्यूज़ कढ़ते हैं सो इत्थे हुण साइन ए साइन हुंदा है लंब बटे करण यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो साइन ए दी वैल्यू आ जाएगी ए दे लई परपेंडिकुलर है 1K BC सो 1K ओवर हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला 2K इत्थों साइन ए दी वैल्यू आ गई अपने कोल 1 ओवर 2 हुण कढ़दे हां आपां वैल्यू कॉस ए दी कॉस ए यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज सो रूट 3K ओवर 2K सो इस दी वैल्यू आ गई रूट 3 ओवर 2। हुण साइन सी ते कॉस सी दियां वैल्यूज़ कढ़नियां ने साइन सी कढ़दे वेले जदों आपां सी नूं एंगल कंसीडर करना है तो आ चीज़ बेस बन जाएगी सी दे लई ते उहदे सामने वाला आह परपेंडिकुलर बन जाएगा यानी कि जदों हुण आपां ए दी जगह सी ले लिया तो बेस ते परपेंडिकुलर ने अपनी जगह बदल लैनी है बेस हुण इत्थे पहुंच जाएगा परपेंडिकुलर आ वाली चीज़ बन जाएगी सो साइन सी दी वैल्यू कढ़दे हां साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज सी दे लई परपेंडिकुलर आ होएगा सो रूट 3K ओवर हाइपोटेन्यूज 2K वैल्यू आ गई रूट 3 ओवर 2 तो इस तरह आप कॉस सी कढ़ते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बेस होएगा हुण आह वाला नाल वाला 1K ओवर 2K मीनस इस दी वैल्यू आ गई अपने को 1/2। हुण सारियां वैल्यूज आ चुकियां ने हुण आपां इन्हां दी वैल्यू कढ़ते हैं सो फस्ट पार्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी वैल्यू भरते हैं साइन ए 1/2 कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए रूट 3 ओवर 2 इंटू साइन सी
√3/2। सो ये बन गया अपने कोल 1/4 प्लस ये बन जाएगा √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो 3 2 × 2 4। सो नीचे LCM 4 उपर 1 + 3 यानी कि 4/4 तो कट के आ जाएगा अपने कोल 1। सो एक आंसर आ गया अपने कोल। उस तो बाद दूजी वैल्यू cos A cos C इस च भरते हैं वैल्यूज़। सो आ तुसी लिख लेना, मैं डायरैक्ट वैल्यूज़ भर दिना, मेरे को जगह थोड़ी है क्योंकि cos A यानी कि √3/2 इंटू cos C यानी कि 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है अपने कोल 1/2 इंटू sin C √3/2। सो ये बन जाएगा √3/4। इस तो बाद माइनस आ पिछला भी जो पोर्शन है वो भी √3/4 बन जाएगा। सो सेम कैंसल हो जाएगियाँ, 0 आंसर आ जाएगा अपने कोल इस पार्ट का। हुण आने एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन ते जिस आपां नूं कहा गया है कि एक ट्राइंगल PQR है जिहड़ी कि राइट एंगल्ड एट Q है, यानी कि Q एंगल 90 डिग्री उन्होंने आपां नूं दिता है। आपां डायग्राम बनाई, उहदे विच Q ले लिया 90 डिग्री का। PR + QR की लेंथ है अपने कोल 25 सेंटीमीटर। PR + QR इन्हां दा जोड़ दिता होया है 25 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ है अपने कोल 5 सेंटीमीटर, वो लिख ली। डिटरमिन वैल्यूज ऑफ sin P cos P ते tan P, इन्हां दियां वैल्यूज कढणियां ने। सो आपां P एंगल लिया नीचे तां करके, सो इत्थे अपने कोल यह P हो गया। हुण आपां पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहलां तां QR ते PR की लेंथ कढदे हां, उस तो बाद आपां इन्हां दियां वैल्यूज कढांगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला आपां इहदे विच पाइथागोरस थ्योरम लगाने आ। बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग अपने कोल हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड है PR। सो PR द स्क्वायर इज इक्वल्स टू दूसरी साइड ते आ जाएगा अपने कोल QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। आह आ जाएगा। हुण PR की जगह ते PR की इत्थों वैल्यू कढ़ के भर लेने इन टर्म्स ऑफ QR। तो इत्थों PR आ जाएगा अपने कोल PR बराबर 25 माइनस QR। सो आ वाली वैल्यू आपां PR की जगह भर लेने आ 25 माइनस QR उसका स्क्वायर। दूसरी साइड ते PQ की लेंथ तो है अपने कोल 5, उसका स्क्वायर प्लस QR एज इट इज़ ही ले लेने आपां। हुण इहदे उत्ते A - B के स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। उहदे अकॉर्डिंग यह आएगा A का स्क्वायर, इनू आपां A मन्नांगे, इनू मन्नांगे B। A का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि QR स्क्वायर माइनस 2AB 2 इंटू A है 25 इंटू B है QR। दूजी साइड ते 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर। QR का स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे दोनों साइड ते। आह 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस ए आ जाएगा 50 QR दूजी साइड ते 25। सो इनू इधर ले जाने, इनू इधर ले आने, अपने को आ जाएगा 625 माइनस 25, ए उधर जाके प्लस का हो जाएगा 50 QR बन जाएगा। ये चो इनू घटावांगे तो आ जाएगा अपने कोल 600 बराबर 50 QR। हुण आह 50 के टेबल ते 600 की कटिंग अपने कोल हो जाएगी 50 एकम 50, फिर 10 100 50 दूनी 100। सो QR की लेंथ आ गई अपने कोल 12 सेंटीमीटर। हुण QR आ गया अपने कोल, इस च भर दिंदे तो अपने कोल PR आ जाएगा विच इंप्लाइज PR बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। सो ये भी लेंथ आ गई, ये भी आ गई, तो एक अपने कोल पहला तो ही है। हुण आपां इन्हां दियां वैल्यूज़ कढ सकते हैं। जिहदी लेंथ आ गई उहदे नाल लिख दिंदे आ गई अपने कोल 13, आ गई अपने कोल 12। सो इत्थों वैल्यू कढदे हैं पहलां आपां sin P दी। sin P साइन हुंदा अपने कोल लंब बटे करण। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख लैणगे इत्थे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर P दे लई है आह वाली लेंथ है जिहड़ी इहदे सामने हुंदी है जो एंगल दे QR। सो QR ओवर हाइपोटेन्यूज PR।
सो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर ओवर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के 12 ओवर 13 पहली वैल्यू आ गई। उस तो बाद कॉस पी की वैल्यू कढ़ लेंगे। कॉस हुंदा है आधार यानी कि बेस बटे करण यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू आधार होएगा अपने को आह 5 सेंटीमीटर बटे करण 13 सेंटीमीटर। आ कैंसल, सो 5 ओवर 13। आ पहला आंसर, आ दूजा आंसर। एक तीजी वैल्यू जी रह गई अपने को tan p दी, जो कि हुंदा अपने कोल लंब बटे आधार, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, आधार यानी कि बेस। सो p दे लई लंब होएगा अपने कोल 12 ओवर बेस होएगा अपने कोल 5 सेंटीमीटर। इन्हां दी कटिंग करके 12 ओवर 5 अपने कोल आंसर नंबर 3 आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन होया कंप्लीट। अगे आने आपां 11th क्वेश्चन ते, जो कि है ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन यानी कि सच या झूठ। सब तो पहला देखते हैं, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लैस दैन 1। नहीं जी, ये गलत है, क्योंकि tan की वैल्यू अगली एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕਰੋਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਾਲਸ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ secant a is equals to 12 over 5 for some value of angle a। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ secant ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 over 5 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ a ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ secant ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos ਦਾ ਉਲਟਾ, ਤੇ cos ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ secant ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ 1/0 ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ 1 ਹੋਏਗੀ, 1 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, cos a is cosecant of angle a। cos a ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ cosecant angle a ਨੂੰ cos a ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं, cosecant angle a ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ cos ਲਿਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ cosine of angle a। cosine of angle a ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ cosecant, ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ cosine। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ false। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ फोर्थ ਤੇ, cot a is product of cot and a। नहीं, ਇਹ wrong ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ एंगल ए ਦੇ ਉੱਪਰ cot यानी ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ false। ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, sin a ਕਹਿੰਦਾ 4/3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦੇ ਲਈ। sin ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ 4/3 ਜੋ ਕਿ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾइन ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 1 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾइन ਕਦੇ ਵੀ ਅਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ।